Good morning, students. How are you? So, in your previous lecture, right, you have to discuss about various things like beam engine, right, locomotive wheel, right, okay, and many other topics. So, now in this lecture, we discuss and continue our new topic, that is pantograph, right, and simple lever mechanisms, right, with short calculator mechanisms. Other we will see. Okay, I'm sharing the slide with you. Wait for 1 minute. So, students, you see the pantograph, right? So it's our next topic there. Okay, so pantograph, right? Okay, pantograph, the device. You know where we use this device, right? I'm on the spotlights for you. Okay, right. Okay, so pantograph, right? You see the link A, right? Okay, A to B, A to B, B dash, B C, P, right? These are the things for this. Now the device is used to reproduce displacement exactly in large scale. So where it is used, it's used in the offices, drawing offices, right? For duplicating a drawing. Like you, आपके पास एक small scale पे drawing है, you want to on the enlarge scale. So what will be you use? You directly use the pantograph. That's a double lever mechanism. Okay. So it is a 4-bar mechanism in the form of parallelogram, right? And A, B, C, D. There's the A, B, C, D, right? And the link B, C के साथ ये further connected है and extended to P, right? The thing is P, इसको point को note रखना P और ये further P dash बाद में आएगा. Now and the ratio of AP, AP ये small p की बात होगी जैसे, ठीक है, to the AP and that's the letter AP, बड़ा वाला P, right? ठीक है, इसको याद रखना AP by AP, that is the ratio. And second one is, दूसरी देखो BC, B पॉइंट कहाँ पे सर्च करो, BC by BP, ये दिस इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद हमारा जो एनलार्ज स्केल है वो डॉटेड में जो है वो शो करेगा, राइट? तो पेंटोग्राफ ऑफ द रेयर पूछा जाता है, यू हैव टू नो अबाउट द जस्ट एग्जांपल फॉर दिस कि कहाँ इसको यूज करेंगे ड्राइंग ऑफिस में फॉर डुप्लीकेट द ड्राइंग फॉर एनलार्जिंग द स्केल. ओके, so if you have any doubt, you can comment in my box and raise your query with your raised hands. Now, Ackermann steering, but it's very important, right? You all have cars, right? Cars के बगैर तो यहाँ possibility नहीं है. Driving कहीं भी अपने करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी, अब आप Ackermann steering you use, right? ठीक है. देखते हैं कि आप कुछ wheel turn करते हो, steering घुमाते हो, तो you know कि वहाँ पे एक electric motor लगा है, right? Rack and pinion है और आपने turn किया, it will move. But you know the mechanism there. What is the mechanism? So there AD is that link, right? BC is link, right? A, B, C, D, that are the four connectivity, right? ठीक है, अब होता क्या है, राइट? ठीक है, अब ये जो लास्ट आप व्हील्स का रोटेशन देख रहे हो, जो फ्रंट का देख रहे हो, ठीक है, इसमें हमारे मैकेनिज्म है कि भी ये रोटेट कैसे होता है, स्लिप क्यों नहीं करता है, ठीक है. नाउ अब हो क्या रहा है, इन दिस देयर आर टू शॉर्ट लिंक्स ए बी एंड बी सी, राइट? कौन कौन से हैं? ए, बी एंड डी, सी, जो कि इक्वल लेंथ पे हैं, और जो ए डी एंड बी सी है, विच लेंथ ऑफ ए डी इज केप्ट मोर देन दैट ऑफ बी सी, राइट? नाउ इफ द कार मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, मान लो कि कार हमारी स्ट्रेट मूव आउट पे चल रही है, ठीक है, जो टू लिंक्स हैं हमारे ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, राइट? टू लिंक्स कौन से, राइट? दीज आर ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर दिख रहे हैं. बट नाउ क्या होगा, व्हेन द कार टेक्स टर्न, राइट, all the four will intersect at common point P. कहाँ पे? At common point P. यानी कि जो आपका रोटेशन AD लिंक है, BC है,
वो बी पे एड कर रहा है और लास्ट का जो टायर है उसका भी कॉमन पॉइंट जो है वो बी पे आके मैच कर रहा है. सो जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड है दैट बी वन ऑफ अ प्योर रोलिंग, राइट. सो दैट्स व्हाई हम स्लिप नहीं करते हैं और यहाँ पे टर्निंग है हमारी इजली हो जाती है, राइट. सो इट्स अगेन सिंपल टॉपिक. ठीक है. नाउ come to the inversions of single slider crankshaft. That is important, very important. Last time पंजाब स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन में से एक पूछा जाता है, वो है आपका इसमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म जब बेड स्मोक रिटर्न मैकेनिज्म. सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे बुल पेंडुलम इंजन. ठीक है, राइट. सो इट्स वेरी इजी. इन दिस मैकेनिज्म द इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द सिलेंडर, राइट. और लिंक 4 यहाँ पे देखिए दो सिलेंडर हैं ए, ठीक है, लिंक 4, राइट. लिंक 1 पिस्टन रॉड है, कनेक्टिंग रॉड लिंक 3 है, क्रैंक लिंक 2 है एंड अगेन दो हमारे पास लिंक 4 है. अब किया गया हमने लिंक 4 को फिक्स्ड कर दिया है. इन दिस केस व्हेन द क्रैंक लिंक 2 रोटेट्स, राइट, लिंक 2 रोटेट हो रहा है, राइट. ठीक है. अब द कनेक्टिंग रॉड लिंक 3 ऑसिलेट्स अबाउट अ pivoted to the fixed link 4. अब यहाँ पे आपका जो लिंक 4 है, ठीक है, सिलेंडर दैट इज अ फिक्स. अब कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा है और क्रैंक 2 क्या कर रहा है, दैट विल ऑसिलेट, राइट. अब जब ऑसिलेट होगा अबाउट पिन पिवटेड टू द लिंक 4 है एट पॉइंट ए द पिस्टन अटैच टू द रॉड लिंक 1 रेसिप्रोकेट, जो कि ये रेसिप्रोकेट करेगी. नाउ यू सी द डायग्राम, देख क्लिप आर्ट एक जीएफए इमेज है. यू सी वो क्या रहा है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है. ओके. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ ट्रू एंड फ्रो मोशन रेसिप्रोकेट हो रहा है और जो आपकी क्रैंक है कनेक्टिंग रॉड है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन में मूव करती है. ओके, क्लियर. आई थिंक इट्स इजी, राइट. हमारे 2-3 टॉपिक इजी रहेंगे. जो नेक्स्ट है वो हमारा थोड़ा सा टफ रहेगा, वो हम ध्यान से समझेंगे, राइट. ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, इट्स अगेन इजी. आपको पता है कि आप पंपिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है. और एयर प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसकी जो यूटिलाइजेशन रहती है, राइट. और बेसिक सैंपल कहीं भी आप नियर बाय शॉप्स पे इसको देख सकते हैं, हार्डवेयर शॉप्स में, ठीक है. आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू अ रोटरी मोशन, राइट. रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी मोशन में यूज करते हैं. दिस मैकेनिज्म लिंक 3 फॉर्मिंग द टर्निंग पेयर. यहाँ भी देखिए कनेक्टिंग रॉड है, लिंक 4 सिलेंडर है, लिंक 1 piston rod है, crank link 2 है. So what will happen? The link 3 corresponding, right? Link 3 correspond to the connecting rod of the reciprocating steam mechanism, engine mechanism. When the crank link 2 rotates, right? अब crank link 2, right? Crank link 2 क्या करेगा? Rotate करेगा. Piston attached to the piston rod link 1, link 1 के तहत. तो reciprocated cylinder 1 link 4 oscillate. साथ साथ में link 4 oscillate भी करेगा हमारा. ये चीज यहाँ पे माइंड रखना. About the pin pivoted to the पॉइंट एट ए, ठीक है. किसी एक पॉइंट पे वो पिवटेड होकर वहां पे पिवट होगा, वहां उसके अकॉर्डिंगली. अब देखिए ये ऑसिलेट तो कर रहा है, साथ साथ आपको रेसिप्रोकेटिंग. तो दिस इज द पॉइंट फिक्स फॉर दिस. ओके, क्लियर. फुल से इंपॉर्टेंट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म 10 मार्क्स में इसलिए गेन किया. मैं 10 लिखा भी हुआ है यहाँ पे, राइट. सो व्हाट आर द यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. ओ सी, द पॉइंट ओ सी, यहाँ पे थीटा की बात की हुई है यहाँ पे. तो ओ सी जो है वो फिक्स्ड है, वहाँ ए से हमने किया है. फिर सी पी है, ठीक है. इस पॉइंट को नोट करना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी पी 2 सी पी 1, क्योंकि ये आपके पॉइंट्स आगे जो है इजी रहेंगे. ओ क्यू 1 ओ क्यू 2 ओ क्यू, देन द रैंक, राइट. ठीक है. लिंक ए जो है हमारा फिक्स्ड है, मैंने अभी आपको बताया था. लिंक बी जो है वो रोटेट करेगा. लिंक बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, ठीक है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा. लिंक सी ऑसिलेट करेगा. लिंक सी ऑसिलेट, ठीक है, राइट. ठीक है, ऑसिलेट्स की डायरेक्शन, राइट. एंड लिंक डी रेसिप्रोकेट. लिंक डी रेसिप्रोकेट यानी कि इसके बीच में ये रेसिप्रोकेट करेगा. तो देखते हैं ये कैसे करता है लिंक डी रेसिप्रोकेट, राइट. एक थोड़ा सा जी देखिए कि क्या हो क्या है, सी देयर वो देखिए, राइट. तो हम फर्दर उस पर आते हैं. सो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे आप, इसको भी मैं देखिए, राइट, राइट डाउन, राइट. ठीक है. तो द इन्वर्जन, राइट, इसमें है कैसे समझ रहे हैं. दिस इन्वर्जन द लिंक ए ओ सी. अब इस पार्ट को आप यहाँ पे आ जाइए. लिंक ए, राइट, ठीक है. लिंक ए ओ सी इज फिक्स्ड एंड लिंक बी इज रोटेट एज अ सेंटर विद सी एज अ सेंटर. याद रखना सी एज अ सेंटर है. इस डायग्राम को मत भूलना, डायग्राम ड्रॉ करके ही यहाँ पे पॉइंट्स लिख पाएंगे, अदरवाइज रट्टा नहीं लगाना है, राइट, इस चीज को. ओके. तो पार्ट ऑफ द लिंक सी इज स्लॉटेड, राइट. अब यहाँ पे सी में जो पार्ट है
ठीक है। अब वो स्लॉट होगा यहाँ पे जो कि लिंक्ड हो रखा है पी के साथ, राइट, ठीक है। तो अब slotted with slider block attached to the link B and slides about pin P. Now an extension OQ is provided. देखेंगे OQ, right, OQ एक एक्सटेंशन हमने जो है इसकी प्रोवाइड कर रखी है, राइट, जो कि फर्दर क्या हो रहा है, लिंक C अटैच टू द रैम R, जो कि आपके रैम R OQ ये R के साथ आपका जो है एक लिंक फर्दर अटैच्ड है, ठीक है। तो अब वो क्या है, मूवमेंट में क्या हो रहा है, जो ओ सी है आपका, ठीक है, ओ सी फिक्स है, सी पी, अब ये मूवमेंट कैसे होगी यहाँ पे, दिस इज सी पी वन एंड सी पी टू, दैट इज स्लॉटेड लिंक। जब आपका पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे, राइट, यहाँ पॉइंट नोट करेंगे, तो द एक्सटेंशन राइट डाउन यहाँ पे, द एक्सटेंशन लिंक ओ क्यू फ्रॉम द पोजीशन ओ क्यू वन, ठीक है, ओ क्यू की बात करेंगे, ओ क्यू से ओ क्यू वन की तरफ मूव करेगा, ओ क्यू टू की तरफ मूव करेगा, देन द रैम विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएगी, ऑब्वियसली है, राइट, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट टू द क्रैंक बी, ठीक है, एंड उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्रैंक बी के साथ फर्दर कनेक्टेड होगी एंड विल फॉर्म, ठीक है, CP1 टू CP2, यहाँ पे CP1 से, ठीक है, CP2 की तरफ वो फर्दर मूवमेंट होगी, राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, राइट, व्हेन द एक्सटेंशन लिंक विल बी एट द पोजीशन OQ1, ठीक है, अब ऑब्वियसली है कि वो पोजीशन जो है OQ1 और OQ2 पे मूव होगी, जो कि फर्दर CP1 और CP2 के साथ मूव लेगा, तो फर्दर मींस दैट व्हेन द एक्सटेंशन लिंक, राइट, ठीक है, मूव फ्रॉम OQ2, जब वो मूव होगा OQ2 से OQ1, द रैम विल, मतलब ये रैम है, राइट, ये भी मूव करेगी, द रैम विल मूव फ्रॉम CP2 टू CP1, यानी कि यहाँ से इस तरफ को ये मूव आउट करेगी, टाइम टेकन ड्यूरिंग दी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की तरफ जो टाइम टेकन हुआ, दैट इज द फॉरवर्ड मोशन, ठीक है, ऑफ द रैम विल बी इक्वल टू द, राइट, टाइम टेकन टी क्रैंक विल बी मूव फ्रॉम कहां से कहां, CP1 टू CP2, राइट, एंड द सेम बाय द क्रैंक लिंक B। तो इस चीज को माइंड रखना है कि जब भी हमारी रोटेशन होगी यहाँ पे, राइट, ठीक है, व्हाट विल हैपन, जो आपका जो रैम ये कनेक्टेड है ये मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये देखिए कि हमने GF इमेज डाली हुई है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ठीक है, राइट डाउन टाइम टेकन ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक, टाइम टेकन ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक डिवाइड बाय टाइम टेकन टू द आइडियल स्ट्रोक, दैट इज द 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज की थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट, you see Bird's quick return mechanism, here is the example for this, ठीक है, now clear these things, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, तो ये भी एक उसी के टाइप में है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, जो चेंजेस क्या हैं वो आपको बताएंगे, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो COC है, ठीक है, राइट, वो क्वाइट कितना जो फिक्स लिंक किया हुआ है उसने कितनी लेंथ उसकी बड़ी है, और बट जो CP है, CP1 और CP2, ठीक है, उसकी थोड़ी सी क्वाइट छोटी हो चुकी है, जो कि फर्दर OQ जो है वो फर्दर ऑसिलेट कर रहा है OQ1 टू OQ2, राइट, ठीक है, और जो फर्दर Q1 है वो हमारी रैम के साथ कनेक्टेड है, जो कि मूवमेंट R1 और R2 से है। देखते हैं हम इसको फर्दर, ये भी 10 मार्क्स से पूछा जाता है कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट, द ओनली थिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्विक रिटर्न मोशन एंड द बिट्स कोड is that the different proportions are adopted for the driving crank CP and fixed link OC, right? तो याद रखना चीज के लिए जो सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें, दैट की जो प्रोपोर्शन अडॉप्ट कर वहाँ पे ड्राइविंग लिंक क्रैंक जो था वो CP था, अब यहाँ फिक्स लिंक क्या कर रखा है हमने OC, वहां पे दोबारा आ जाओ, एक बार क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, CP की बात कर रहा है ड्राइविंग R, ठीक है, राइट, अडॉप्टेड फॉर ड्राइविंग लिंक CP था, यहाँ पे एंड द फिक्स्ड लिंक OC है। नाउ CP इज शॉर्टर देन द OC, ये मैंने आपको भी बता के हटाऊं, वो शॉर्टर लेंथ है OC के साथ, राइट, तो रिजल्ट क्या होगा, OQ ऑसिलेट, OQ जो है वो हमारा OQ ऑसिलेट करेगा OQ1 टू OQ2, राइट, ठीक है, एंड व्हेन क्रैंक लिंक विल बी रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट C, अब
सी यहाँ पे फिक्स्ड है, क्रैंक उसके लिए जो है वो रोटेट करेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, राइट। द पिन क्यू इज कनेक्टेड टू द पिन आर, राइट। जो क्यू है वो आर के साथ फर्दर हमारी कनेक्टेड है। देन व्हाट विल हैपन, द रैम ऑफ द शेपर कॉजेस रैम टू रेसिप्रोकेट अलोंग द ओ क्यू, उसके अलोंग क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगी। कैसे करेगी, यू सी देयर, देखिए, वेरी गुड जी, टू क्लियर ऑल द थिंग्स टू यू, राइट। इफ यू एनी डाउट, राइट, कमेंट बॉक्स में अभी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। So this is the last topic for this inversions of double slider crank change, that is elliptical tremors, Kirchhoff mechanism, old Ohm coupling, right? This is a practice for you, right? ठीक है, आपने ये एक सेमिनार में रिकॉर्ड करना है, elliptical tremors, Kirchhoff mechanism और old Ohm, that is very easy like this, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं कुछ TF इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, you see there, Kirchhoff mechanism। अब इस Kirchhoff mechanism कहाँ यूटिलाइज होता है, जहाँ पे हमारे फर्दर पेंडुलम पंप्स, जहाँ पे हमारे पंप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, राइट, ठीक है, हमें कहीं स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें कहीं फर्दर कोई और मूवमेंट लेनी है, तो ये मैकेनिज्म वहाँ यूज होते हैं। ये जो तीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, राइट, यू कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर दिस, और इसका मैकेनिज्म आपने इसे शेयर करना है, राइट, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, देन वी कैन डू अगेन फॉर दिस ओल्ड एंड कपलिंग, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत पुराना भी है, आपने देखा भी है, ये स्ट्रिंग मशीन आपने देखी, आपके घरों में सबके पास होगा, राइट। तो व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग मशीन में क्या कर रहे हैं, रोटेट बाय हैंडल, एंड साथ में जो है वो आपका पिन वगैरह जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल, गुड एग्जांपल फॉर ओल्ड एंड कपलिंग। So students, thanks for the lecture today, right? If any doubt, ठीक है, you can make the comment box, ठीक है, और यहाँ पे raise your hands कर सकते हैं, अगर query है तो बताइए, राइट। हम एक बार फिर से इसको गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने what we read today, राइट। So पेंटोग्राफ, ठीक है जी, राइट, एकरमैन स्टीयरिंग, ठीक है, राइट। So next हमारी इन्वर्जेंसी बुल इंजन, ऑसिलेट सिलेंडर इंजन, ठीक है, आईसी इंजन, स्लॉटेड लीवर, फिट स्पोर्ट, ठीक है, रिटर्न मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने पेंडुलम पंप, ऑसिलेट सिलेंडर इंजन, राइट, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म्स आपको देखा, ठीक है, फिट स्पोर्ट क्विक रिटर्न मोशन कैसे वर्कआउट करता है, शेपर कैसे वर्क करता है, ठीक है, स्लॉटर लीवर कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है, राइट, क्रैंक एंड स्लॉटेड। अब ये इलिप्टिकल ट्रायंगल्स को जो ओल्ड है, राइट, दिस इज द फॉर प्रैक्टिस टू यू, राइट, ठीक है। Thanks, students. So we will continue your next lecture.